Hello all, welcome back to Learning Partner. If you are new, please do subscribe. This is another channel where you can directly connect with me. We have around 1,000 plus members already who are working. We take live coding sessions and everything. To just get notified about those sessions, please do join this group. Fine. So in last session, we have seen how do we create React project, what are component, what are the types of components we have, correct? So in SRC folder, we have created a component folder, and inside that we have created two component. And this component we have rendered into our parent component, that is app component, by using its selector or just a class name, function name you can say. Fine. So today we will just focus on the component, and in specific to component, there are two topics. So data binding and the event binding. So first we will complete event binding, and then if we have the time, we will start the data binding. Fine. So for now, as those who knows me from the Angular side, Angular tutorial, so for every topic, we will be creating different component so that whatever the topics we have, we can find the specific code over to that component. So I'm creating new component that will be event.js. Now inside this component RSC. So I have created my event component. Now this event component I need to render into my app.js component. So I'm removing this existing code, and over here event. Fine. So I have created component. That component I have rendered into my parent component. Fine. Let me just zoom a little bit. Now, so in whenever we talk about web application, so obviously whenever we start learning, event binding will be there. Either it is Angular, React, Vue.js, Next.js, everywhere events will be there. Or even plain JavaScript also we have the event. So if you know how we used to write event in JavaScript, same thing we do in React also. Okay. So now, first of all, this is an arrow function. Now inside this arrow function, again, we can create functions also. Okay. So let's create a function constant show welcome is equal to arrow function. Okay. And here I will say a simple alert box, welcome to React tutorial. Okay. So what I have done, I have created a normal function. Now this function, it's an arrow function. And now this function I need to call on a button click. So inside this div, I will create a button. In last session, I forgot to mention one thing about the component. So in every component, we will have at least only one parent div. We cannot have multiple parent div. See, if I create one more element, I get the error. So in my functional component, I can only have a single parent. We cannot have two parallel element. Okay. So only one parent element will be there. All will be inside over this parent element. Okay. This is about component. Now, so over here, let's say show welcome. Now, so we have a button. On click of this button, we need to call this function so that we will get the alert pop-up. Now, how do we call it? So on click, just how we write just how we write event in JavaScript, same like that we write. But here you can see after equal to in JavaScript, what we used to do, double quote, and then our function name and round bracket. This is how we used to do in JavaScript. But in React, you have to do as equal to after that curly bracket. Now inside that, you have to specify your function and not with the round bracket. Okay. We will see what happens if we do that. So this is the first way how we bind the event. So this is the function which we have created. Now this function we are binding on click of this button. Let's just test it. So if I click on this button, you can see I'm getting the pop-up and whatever the message I have said over there. So this is very basic how we bind the event. You create a function inside your component, and that function you call on a particular button or label, span, whatever you know, like on all the element, we can write the click event. Fine. This is one way. Now let's create one more button. Now I'm just copy pasting this.
But as I said, we should not do like this. Okay. Here I'm saying button 2. So see now what happens. Or let's create one more function just to identify. Show welcome to. Okay. And this function I'm calling it over here. And here I'm saying dummy function just to identify. So what I have done, I have created one more function inside that alert box is there with some different message. And this function I'm calling on this button, but with this round bracket. So see what it does. See, even if I reload, by default, we get that function automatically called. So how React work is like whole this page means whatever the code we have, single line will execute. And if this is syntax what we similar to say in the normal HTML page, we used to have a script tag, and script tag, if we have to execute one function, we used to call like that. So this is like you are directly invoking the function. So on the page load, whenever this line gets executed, your function will automatically trigger. So that's what I said. We cannot add a round parenthesis over here whenever we have to bind the event. So we have to always provide the directly function name. Clear? Everyone got the reason why we should not do like this? Okay. Now, so this is a normal function. Now, I'm just commenting this so you can also test it. I'm creating one more function, but now with a parameter. Okay. Now this function was responsible. How many times we call this function? Every time this was going to show the same message because it is static. Now I want to create a function which whatever the message I want that it should display. Okay. Show message. Just a function name I'm giving. Now this function is going to be a parameterized function, a function which can accept a parameter. So message. Okay. Now in alert, whatever the message means, whatever the parameter we get that we are going to pass it over here. So whatever the value we get over here that get displayed into our alert box. Now, let me just copy. Now this function this function has a parameter. So now if I call this over here like this, fine, let's see. Now if I click on show message, see, we are getting object something. Okay. So this function has a parameter. So when we are calling this function, we have to pass a parameter. But again, as I said, we cannot invoke like this. If we invoke like this and we pass some message, test message, again on the page load only, this function will get called. See, so we cannot call like this. So in React, there are two ways how we trigger a function. So first is this way, on our event name is equal to and whatever the function name you have. Second way is by using arrow syntax. So round bracket is equal to curly bracket and then your function name. This is your function name and round bracket. And here you can pass the message. Let's say show Angular. I will just copy this button one more time. And here I will pass Angular as a parameter value. And here I will pass React. Fine. So now we have two buttons. On both the button, we are calling the same function, but with a different parameter. Fine. Let's save. Now, if I click on show React, you can see React is visible. If I click on Angular, Angular is visible. So these are the two ways by which we can execute our function or invoke our function in the React. So that is nothing but event binding. Now here is a question, when you will use this way and when you will use this way. So let's say your function doesn't have a parameter. It's just a normal function. So you can use this way, but it doesn't mean that you cannot use like this also. Oh my God, sorry. Again, I started in English only. Okay. I hope everyone understood, but see, I will repeat one more time. So event binding, okay. कोई भी वेब एप्लीकेशन की बात रहे, शायद जावास्क्रिप्ट रहे, एंगुलर रहे, रिएक्ट रहे, तो हर वेब टेक्नोलॉजी में इवेंट बाइंडिंग होता है. इवेंट बाइंडिंग मतलब नथिंग बट क्या, हमारा फंक्शन होता है और वो फंक्शन हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के किसी ना किसी इवेंट पे ट्रिगर पे हमें कॉल करना होता है, राइट. तो रिएक्ट में भी हम फंक्शन बनाते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, मतलब नथिंग बट अपने कंपोनेंट का जो फंक्शन है उसके अंदर ही हम फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बना रहे हैं, और ये अपने एरो फंक्शन है. ठीक है.
अब ये फंक्शन शो वेलकम मैसेज जो मुझे बटन के क्लिक पे करना था, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हो ऑन क्लिक, वैसे ही सेम, लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के अंदर मेरे फंक्शन का नाम। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही स्क्रिप्ट ये अपना इवेंट ये जेएस लोड होगी, तो बाय डिफॉल्ट पेज कंपोनेंट लोड होते ही ये मेरा फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वोकिंग हो रहा है डायरेक्ट। ओके, इट्स लाइक एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लेना है। एक ये वे हो गया जिससे हमें फंक्शन कॉल कर सकते हैं। दूसरा वे है एरो सिंटैक्स वाला। ये एरो फंक्शन वाला सिंटैक्स लग रहा है। ओके, सो ये हमारा दूसरा वे है जो जिससे हम इवेंट बाइंड करते हैं। सो ऑन क्लिक, उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट इक्वल टू एरो सिंटैक्स वाला फॉर्मेट, करली ब्रैकेट के अंदर अपना फंक्शन और राउंड ब्रैकेट। ठीक है। अब मैं बता क्या रहा था कि ये वाला वे कब यूज करोगे, जब तुम्हारे फंक्शन को पैरामीटर नहीं है। बट अगर तुम्हारे फंक्शन को पैरामीटर है तो तुम्हें ऐसा ही कॉल करना पड़ेगा, ये वे नहीं चलेगा। ओके, बट अगर तुम्हारे फंक्शन को पैरामीटर है तो ये तो चलेगा ही नहीं। ओके, बट ये फंक्शन जिसको पैरामीटर नहीं है, ये भी मैं ऐसे यहां पे कॉल कर सकता हूं। फिर से तीसरा बटन लेते हैं अपन, और यहाँ पे ये फंक्शन में कॉल कर रहा हूं। इसको पैरामीटर नहीं है तो रिमूव करते हैं। शो वेलकम टू कर रहा हूं। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे भी वही मैसेज आया, वेलकम ट्यूटोरियल, यहाँ पे भी वही मैसेज आया, और ये अपने दूसरा वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला एरो सिंटेक्स वाला वे दोनों फंक्शन को चलेगा, आइदर फंक्शन को पैरामीटर है या नहीं है। ठीक है, बट ये वाला वे जो है ये तभी चलेगा जब तुम्हारे फंक्शन को पैरामीटर नहीं है तभी। ठीक है, सो इन दो तरीके से अपन फंक्शन इवेंट बाइंडिंग करते हैं। तो ये मैंने क्लिक इवेंट बताया। उसके बाद लेट्स से ड्रॉप डाउन लेते हैं, और ड्रॉप डाउन के ऊपर अपना चेंज इवेंट लगता है, राइट। सो एक ड्रॉप डाउन लेता हूं मैं, सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट स्टेट। ठीक है, इसके अंदर फिर से ऑप्शन रखता हूं मैं। महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जैसे ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज हुई, जैसे यूजर ने वैल्यू ड्रॉप डाउन की चेंज की, तो मुझे कुछ फंक्शन कॉल करना है, और मुझे फंक्शन में मैसेज दिखाना है कि ड्रॉप डाउन वैल्यू चेंज। ठीक है, तो फिर से मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, स्टेट ऑन स्टेट चेंज, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट दिखा देता हूँ कि स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, मेरा एक फंक्शन है जिसमें मैंने अलर्ट बॉक्स दिया है। अब ये फंक्शन मुझे क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन के चेंज पे करना है, तो मुझे सिलेक्ट पे लिखना पड़ेगा। सो इवेंट का टाइप कौन सा हो गया, ऑन चेंज, डायरेक्टली, क्योंकि इस फंक्शन को पैरामीटर नहीं तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं। जैसे मैं ड्रॉप डाउन चेंज करता हूँ, देखो मेरा फंक्शन कॉल हुआ। फिर से मैंने ओपन किया और फिर से गोवा चेंज किया, मेरा फंक्शन कॉल हुआ। फिर से मैंने ओपन किया और गोवा ही सिलेक्ट किया, तो नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं। तो चेंज इवेंट कब ट्रिगर होता है, जब तुम्हारी वैल्यू चेंज होती है तभी। ड्रॉप डाउन ओपन करके तुमने वैल्यू सिलेक्ट किया उससे नहीं। अगर अभी गोवा सिलेक्टेड है, अभी मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूं, तभी वो चेंज ऑकर हुआ, तभी जाके मेरा फंक्शन ट्रिगर होगा। बिकॉज वो चेंज इवेंट वैसे बिहेव करता है, सेम जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही बिहेव करता है, राइट। अब टेक्स्ट बॉक्स पे लिखता हूं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ऑन चेंज। अब मैं यही फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये फंक्शन नहीं यूज कर सकते, लेकिन नहीं तो हर एक टेक इनपुट के वैल्यू पे अलर्ट की जगह मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ऑन टेक्स्ट चेंज। अलर्ट की जगह मैं कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू चेंजेस। ठीक है, सो ये फंक्शन मुझे क्या करना है, मेरे टेक्स्ट बॉक्स के चेंज पे। ठीक है, सेव करके चेक करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कंसोल लिखा है, तो ऑब्वियसली मुझे कंसोल में चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखो अभी कंसोल में कुछ भी नहीं है, जैसे मैं लिखना चालू करूंगा देखो प्रिंट हुआ। अब जितने बार लिखूंगा उतने बार ये सिर्फ बढ़ते जाएगा, क्योंकि सेम कंसोल है ना, कंसोल की वैल्यू सेम है, तो मल्टीपल कंसोल नहीं आएंगे, सिर्फ ये इंक्रीमेंट होते जाएगा। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, देखो। ठीक है,
सो जितने बार लिखूंगा उतने बार मेरा वो इवेंट ट्रिगर हो रहा है, उतने बार ये मेरा कंसोल प्रिंट हो रहा है। ठीक है। सो नॉर्मली आइदर इट इज एंगुलर, रिएक्ट, व्यू और कोई भी टेक्नोलॉजी रहे या फिर जावास्क्रिप्ट भी रहे, तो हम नॉर्मली क्लिक इवेंट और चेंज इवेंट यही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी भी होते हैं माउस के ये सारे भी। ठीक है, मैं माउस का एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं एक डिव ले रहा हूँ इसके अंदर, इस डिव को स्टाइल। अब रिएक्ट में जो अपन सी एस एस लगाते हैं वो थोड़ा सा अलग है। ओके, ये देखो यहाँ पे अरे फॉर्मेट में आया है, सॉरी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आया है। तो इसको मुझे देना है विड्थ कोलन 200 पिक्सल, सॉरी, उसके अंदर फिर से ऑब्जेक्ट देना है मुझे, कॉमा हाइट। मैं प्रॉपरली डायनामिक स्टाइल और क्लास कैसे क्या होता है इसके लिए अलग सेशन में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट, मुझे एक ट्रायंगल चाहिए था इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, डिव एरिया करता हूँ। अब देखो मेरे पास एक डिव आया जिसमें ये है। अब अगर मेरा माउस इस डिव के अंदर गया तो मुझे कुछ कोड लिखना है। और अगर इसने ये माउस मेरे डिव से बाहर लीव किया तो मुझे कुछ कोड लिखना है। तो यहाँ पे अपने माउस वाले इवेंट आते हैं। ठीक है, इसके नॉर्मली जैसे मैं बता रहा था कि क्लिक इवेंट और चेंज इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। तो ऑन माउस, अब जैसे माउस इन होता है तो मुझे कुछ करना है, राइट? तो मुझे ऑन माउस एंटर वाला इवेंट लिख सकते हैं अपन। ओके, सो अभी फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार बता चुका हूँ मैं। अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फंक्शन का नाम। आपको नहीं करना है जब, क्योंकि एरो फंक्शन जो एंगुलर वाले, जो एंगुलर से बिलोंग करते हैं उनको एरो फंक्शन लिखने की आदत नहीं होती है, राइट? जो जावास्क्रिप्ट से है उनको भी आदत नहीं होती, तो लिखने की आदत डालो एरो फंक्शन। ठीक है, ऑन माउस इन, यहाँ पे मैसेज करता हूँ प्रिंट कि माउस एंटर्ड। ठीक है, दूसरा फंक्शन लिखता हूँ माउस लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैसेज चेंज करता हूँ कि माउस लेफ्ट। ठीक है, मेरे पास दो डेडिकेटेड फंक्शन है, माउस इन के लिए एक और माउस लेफ्ट के लिए दूसरा। तो ये फंक्शन, अब माउस एंटर पे ये फंक्शन कॉल करूंगा, ऑन माउस लिव दूसरा फंक्शन, जैसे लिव होगा पर्टिकुलर एरिया को, तो ये दूसरा फंक्शन। ठीक है, अगर इस ड्यू पे माउस एंटर हुआ तो ये फंक्शन ट्रिगर हुआ, माउस ने लिव किया तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। चेक करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपरली देखो, जैसे ही माउस मेरे ड्यू के अंदर गया माउस एंटर प्रिंट हुआ, मैं माउस मूव कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं माउस बाहर निकलता हूँ देखो माउस लेफ्ट। क्लियर? सो अपने ये माउस वाले इवेंट है। ओके, सो जितने भी जैसे भी आपको जावास्क्रिप्ट से इवेंट पता है, ये सारे चीज सारे सेम वैसे ही काम करेंगे। ड्रैग वाले हो गए, कीबोर्ड की वाले इवेंट हो गए, की डाउन की प्रेस, सारे इवेंट वैसे की वैसे। बट जैसे मैंने बताया चेंज और क्लिक ये ही दो इवेंट है जो 90% टाइम हम यूज करते हैं, आइदर इट इज रिएक्ट, एंगुलर और कोई भी टेक्नोलॉजी रहे। ठीक है, अब तो ये हमारा इवेंट बाइंडिंग है। इवेंट बाइंडिंग छोटा सा ही टॉपिक है। ओके, अब दूसरा आता है डेटा बाइंडिंग। अब डेटा बाइंडिंग किसे बोलेंगे? डेटा बाइंडिंग मतलब लेट से तुम्हारे पास कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ डेटा है, वो वेरिएबल का डेटा तुम्हें किसी एचटीएमएल के टैग के अंदर दिखाना है। अब जो एंगुलर से बिलोंग करते हैं उनको डेटा बाइंडिंग अच्छे से पता है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं, राइट? अगर लेट से तुम्हारे स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में वैल्यू है और वे वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें एक स्पैन में दिखाना है, तो तुम क्या करोगे? वो स्पैन को आईडी दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वो स्पैन सिलेक्ट करोगे, स्पैन डॉट इनर इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू। ये इतना सब कुछ करना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू एक एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर दिखाना है तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो, फिर उसके इनर टेक्स्ट या फिर इनर एचटीएमएल में हम वैल्यू असाइन करते थे। अब वो सेम चीज रिएक्ट में कैसी होती है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ कांस्टेंट। मेरे एरो फंक्शन के अंदर अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो मुझे लोकल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। सो मैं लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, कोर्स नेम इज इक्वल टू react डॉट जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू है। अब ये वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मुझे क्या करना है, बाजू में ओपन कर लेते हैं।
ये जो वेरिएबल में वैल्यू है वो मुझे इस डिव के अंदर प्रिंट करनी है डिव एरिया के बाद। तो जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, अगर इस डिव के अंदर मुझे ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो इस डिव को आईडी दो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, राइट, उस एलिमेंट का रेफरेंस लो, फिर उसके इनर टेक्स्ट में अपन वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। बट रिएक्ट में सिंगल करली ब्रेसेस यूज करो। ठीक है। अब ये सिंगल करली ब्रेसेस देखो, जैसे हमने फंक्शन यूज किया वहां पे भी सिंगल करली ब्रेसेस दिखा, राइट। तो सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर क्या क्या जा सकता है, जो भी आप वेरिएबल बनाओ या फिर फंक्शन बनाओ, दिस इज नथिंग बट अ वेरिएबल ना, बट उसके बाद आप फंक्शन स्टोर कर रहे हो, राइट। तो ये वेरिएबल का नाम आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करो। देखो अभी डिव एरिया के जा दिख रहा है, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल प्रिंट हुआ। सो ये है अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग, सॉरी डेटा बाइंडिंग, मतलब तुम्हारे कंपोनेंट में जो भी वेरिएबल में डेटा है उसको एचटीएमएल में कैसे बाइंड करते हैं। सो सिंगल करली ब्रेसेस, उसके अंदर तुम्हारे वेरिएबल का नाम। अगर लेट से तुमने यहाँ पे कैपिटल एन है और यहाँ पे मैंने स्मॉल एन कर दिया, तो वो तुम्हारा ब्रेक होगा। क्या बोलेगा कि कोर्स नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब कोर्स नेम नाम का वेरिएबल ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कोर्स एन विद कैपिटल है, राइट। तो कैपिटल स्मॉल भी और स्पेलिंग मिस्टेक भी करोगे तो उसको वेरिएबल नहीं मिलेगा। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू यूज अ वेरिएबल विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये एरर था, कोर्स नेम इज नॉट डिफाइंड मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ वेरिएबल विच इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिफाइंड। ठीक है। सो कॉपी, जब भी आप वेरिएबल यूज करते हो तो मेक श्योर यू कॉपी पेस्ट, अदरवाइज वो एरर आएगा। ठीक है। ये हो गया, डायरेक्टली मैंने एचटीएमएल में वैल्यू प्रिंट किया। अब लेट्स से मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ एक, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स में अगर मुझे वैल्यू रेंडर करना है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में रेंडर करना है। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे, टेक्स्ट बॉक्स को आईडी दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाइट करो, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू तुम्हारे वेरिएबल का नाम देते थे, राइट। अब वो सेम चीज रिएक्ट में कैसी होती है, तो यहाँ पे वैल्यू यूज करो और डायरेक्टली करली ब्रैकेट आया मतलब तुम वेरिएबल पास कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अब देखो मेरा जब टेक्स्ट बॉक्स रेंडर होगा तो वैल्यू के साथ रेंडर होगा। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है रिएक्ट जेएस, समझे। सो ये कब यूज करोगे, जब किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर स्पैन लेबल डिव, राइट, तुम्हें कुछ वैल्यू डिस्प्ले करना है तो तुम ये वे यूज करोगे डायरेक्टली करली ब्रेसेस, जहां पे प्रिंट करना है लेबल हो गया, लेबल में भी दिखा देता हूँ, या फिर स्पैन लो करली ब्रैकेट, ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे करोगे, राइट। अगर तुम्हें स्पैन में तुम्हारा वेरिएबल वेरिएबल में जो भी वैल्यू प्रिंट करना है तो ऐसे करोगे। अगर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, उसमें कुछ वैल्यू तुम्हें बाय डिफॉल्ट लोड करनी है तो तुम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करोगे। ठीक है। सो देखो अब अपने पास ये ड्रॉप डाउन था, लेट्स से मुझे बाय डिफॉल्ट गोवा सिलेक्टेड रखना है, बाय डिफॉल्ट मुझे गोवा सिलेक्टेड रखना है, तो तुम क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाते, कांस्टेंट सिलेक्टेड स्टेट इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, गोवा। अब मेरे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू है, तो इस सिलेक्ट एलिमेंट को यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ। ठीक है। देखो मेरा गोवा सिलेक्टेड हो गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने वैल्यू दिया, इस ड्रॉप डाउन को मैंने वैल्यू दिया, तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो अगर ऑप्शन मेरे पास प्रेजेंट है तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल था, इसी को मैं अगर स्मॉल करता हूँ तो लगे तो मेरा सिलेक्टेड नहीं रहेगा। देखो फिर से सिलेक्ट स्टेट पे आ गया, क्योंकि मेरे वेरिएबल में क्या वैल्यू है, कैपिटल जीओ ए वाली, और यहाँ पे स्मॉल है तो वो मैच नहीं करेगा ना, राइट। तो कैपिटल अगर है तो वो मैच होगा, जो भी वेरिएबल में वैल्यू है उस वेरिएबल का एग्जैक्ट ऑप्शन अगर प्रेजेंट है तो वो ऑप्शन मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगा। दिस इज डेटा बाइंडिंग। क्लियर है। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बट कंसिडर्ड है कि आपको जावास्क्रिप्ट और मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम एंगुलर बैकग्राउंड सो दे नो दिस थिंग्स, राइट। बट फॉर जावास्क्रिप्ट, अगर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी पता है तो मैं जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ। ओके। सो रिएक्ट में इवेंट कैसे लिखते हैं, तुम्हारे कंपोनेंट के अंदर तुम्हारे फंक्शन लिखो ऐसे, राइट। उन फंक्शन को किसी एलिमेंट पे कैसे कॉल करते हैं, तो वो दो वेज है, एक तो ऐसा, ये कब वे यूज करोगे जब तुम्हारे फंक्शन को पैरामीटर नहीं है, अगर तुम्हारे फंक्शन को पैरामीटर है
तो तुम क्या करोगे, इवेंट एरो फंक्शन वाला सिंटेक्स यूज करोगे। बट नॉर्मल फंक्शन है, उसको पैरामीटर नहीं है, तो भी तुम एरो सिंटेक्स के साथ यूज कर सकते हो, बट लेकिन इसके साथ विथ पैरामीटर वाला फंक्शन नहीं कॉल होगा। ठीक है। उसके बाद डेटा बाइंडिंग, जो भी मैंने वेरिएबल बनाया, मेरे लोकल लोकल वेरिएबल कुछ बनाए और उसमें कुछ वैल्यू रखा, ये वेरिएबल की वैल्यू मुझे एचटीएमएल में प्रिंट करनी है, तो करली ब्रेसेस में प्रिंट करो। डिव में मैंने प्रिंट किया, स्पैन में प्रिंट किया। लेट से किसी एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट में करो। ऐसे ही मेरे क्लास भी कर सकता हूँ, डायनामिक स्टाइल भी कर सकता हूँ, डायनामिक सीएसएस, डायनामिक क्लास, सारी चीजें ऐसे ही होगी, बट वो मैं आगे बताऊंगा सिनेरियो के साथ। ठीक है। सो फॉर नाउ टुडे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इवेंट बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। जैसे मैंने बता रहा था कि कल, जैसे मैंने क्लियर किया कि ऑब्वियसली रिएक्ट पढ़ने के आप बाकी ट्यूटोरियल देखोगे ना, तो हर कोई एक अलग ही वे पढ़ाने का, पता नहीं कहाँ से वो चालू हुआ, बट वो कोई भी ट्यूटोरियल देखो, मेरा वे ऑफ टीचिंग और बाकी का वे ऑफ टीचिंग टोटली डिफरेंट है। मेरे जैसा कोई पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं हर टेक्नोलॉजी को, भले ही रिएक्ट अलग है, राइट, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ओवरऑल फ्रेमवर्क ही है ना जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट में हम चीजें कैसे पढ़े थे, क्या क्या था जावास्क्रिप्ट में, वो सेम चीज रिएक्ट में कैसी होती है। अगर ये सीख लो तो तुम्हें बेसिक रिएक्ट कैसे काम करता है वो आ जाएगा। हाँ, रिएक्ट के खुद के कंसेप्ट है, वो बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको मतलब एकदम थेरोटिकली पढ़ना है तो उसके लिए आप दूसरों का ट्यूटोरियल रेफर कर सकते हो, बट एक्चुअल काम सीखना है तो ये जो वे मैं बता रहा हूँ ये वैसे करो, आपको काम करना आएगा इससे। ठीक है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि मैं थेरोटिकल कवर नहीं कर रहा हूँ तो वो मिस आउट होगा, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप अगर आप इंटरव्यू पे प्रिपेयर करोगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी थेरोटिकल चीजें हैं, और बट काम ऐसे ही होता है। ठीक है। Let me कुछ क्वेश्चन है क्विकली तो पूछो, उसके बाद अपन क्लोज करते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? सर वो सिलेक्टेड का जो वो डायरेक्ट एचटीएमएल में भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने वो कांस्टेंट करके लिया था हाँ गोवा का, तो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्टेड एट्रीब्यूट भी लिखते हैं ना, तो वो हाँ, वो वो ज्यादा कर करेक्ट है सकते हैं या ये ऐसा, वाला करेक्ट? बट ये कब यूज करोगे, लेट से तुम्हारी इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू तुम्हारे एपीआई से आ रही है, फिर ये गाइस, guys please be on mute ना, this recording is going to be on YouTube directly, right? Please be on mute if you are not speaking. समझा क्या? अगर एपीआई कॉल से, एपीआई से तुम्हें डेटा आने वाला है तो ऐसे होगा क्या, नहीं। राइट? तो हमें ऐसे ही यूज करना होता है। ओके। ओके। ठीक है। नेक्स्ट, किसी को क्वेश्चन है और? ये समटाइम्स सिंटेक्स जेएस और जेएसएक्स दोनों में लिख सकते हैं सेम, ना कुछ डिफरेंट हो एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फाइल नेम मतलब? और जो इवेंट डॉट जेएस एंड समटाइम्स मैं देखता हूँ रिएक्ट में इवेंट डॉट जेएस एक्स भी यूज करते हैं एक्सटेंशन फाइल नेम। JSX भी यूज करते हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट में करते होंगे, अब नया प्रोजेक्ट मैंने भी नहीं देखा कि, हाँ पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। ओके ओके ओके। ओके। अगर आपको हम्म। वो JSX से एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, JSX मतलब ये अपन क्या कर रहे हैं अभी, डायरेक्टली कंपोनेंट में ही मैं HTML वे में कोड लिख रहा हूँ, राइट? बट अगर आपको JSX से एलिमेंट क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली वो होता होगा, मैंने भी देखा नहीं अब तक इतना। ओके, अच्छा नॉर्मली जो न्यू प्रोजेक्ट बनते हैं रिसेंटली दे आर हाँ, नॉट यूजिंग द जेएसएक्स डायरेक्टली ओनली जेएस। राइट। ओके। ओके, क्योंकि वो इट्स लाइक वे अराउंड गोइंग एंड क्रिएटिंग एलिमेंट ना, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वी आर यूज टू इट। यस यस दैट्स फाइन। ओके। यप। नेक्स्ट। सर यहाँ पे आईडी नहीं यूज करते ना, कौन जैसे सी आईडी? कोई भी लेट से अभी तक तो की नहीं, कोई केस आता है जैसे कब आईडी यूज करनी हो? मतलब एलिमेंट को जो अपन आईडी देते वो, हाँ, अभी तक तो आपने ये आईडी हाँ, कोई कोई एडवांस्ड केस आता है जैसे कब आईडी यूज करनी हो हो सकता रिएक्ट है, के लेट लिए? से तुम्हारा एलिमेंट मैप के अंदर है, डायनामिक है कुछ, और पर्टिकुलर सीक्वेंस के पर्टिकुलर आईडी, पर्टिकुलर एलिमेंट में कुछ करना है, तो कर सकते हैं, बट वो सिनेरियो स्पेसिफिक है, कर सकते हैं। ओके। सेकंड वन ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट द प्रोजेक्ट्स अभी जो बन रहे हैं रियल टाइम दैट इज टीएसएक्स थ्रो या मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट?
60 पर नहीं, फंक्शनल ही रहेगा, क्लास बेस तो कंपोनेंट कोई नहीं यूज करेगा अभी, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा बहुत टफ लग रहा है फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि आई मैंने एंगुलर, मैं एंगुलर में काम करता हूँ, तो मेरे को क्लास कंपोनेंट से बहुत टफ लग रहा था। तो फंक्शनल क्लास कंपोनेंट टफ, कंपोनेंट, रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट है ना वो बहुत टफ है। यस, हाँ, फंक्शनल बहुत इजी है, यस यस। राइट। जैसे मैंने बोला ना कि पूरा बैकग्राउंड पढ़ने में मत जाओ, बैकग्राउंड पढ़ने बैठोगे ना तो रिएक्ट बहुत हार्ड है, राइट। यस। जो जो काम का है एंगुलर में अपन क्या क्या करते वो सेम उतने ही टॉपिक करो, तुमको रिएक्ट समझेगा। अगर पूरा लेके बैठोगे ना कि रिएक्ट में एलिमेंट कैसे क्रिएट होता है, फिर वो जैसे नहीं ऐप डॉट जेएस में रिएक्ट डॉट रेंडर था यस इंडेक्स यस डॉट जेएस यस। में, तो वैसे ही रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, तो वो अगर पढ़ने बैठोगे तो हो गया, रिएक्ट नहीं समझता, हाँ, वो क्या फिर लंबा वो टॉपिक है। हार्ड लगने लगता रिएक्ट। हाँ, एक बार ये बेसिक पढ़ जाए फिर लगे तो वो थेरोटिकल के लिए पढ़ो वो, बट पहले दिन से अगर वैसा किया ना तो फिर नहीं समझता। ओके। सर वो आप कवर करोगे एडवांस में कैसे होता है? हाँ, ये एक बार अपना बेसिक टॉपिक कंप्लीट होने दो, तो ये जो अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या होता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मतलब क्या होता है, तो वो बताऊंगा मैं। ओके। अच्छा, और एक तो क्वेश्चन फिर था, अभी रिसेंटली कल मैंने एक टॉपिक पढ़ रहा था कि जो एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट आप करके जो है वो हम्म, डेप्रिकेटेड हो गया, कुछ नहीं नहीं नहीं, वो एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप एक ऐप थी, सॉरी वेबसाइट थी, वो डेप्रिकेट हुई है, कमांड नहीं डेप्रिकेट हुई है। अच्छा, कमांड है अभी। वो एक क्रिएट हाइपन रिएक्ट करके, क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे ना, तो एक वेबसाइट आती थी। देखो अभी ये नई वेबसाइट आ गई, दिख रहा है डेव। तो पहले क्रिएट हाइपन रिएक्ट ऐप करके एक वेबसाइट थी, वहां पे पूरे अपने को कमांड वगैरह मिलती थी, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जैसा। यही हाँ, इज डेप्रिकेटेड, यही साइट डेप्रिकेट हुई थी। ओके। ओके। बिकॉज उसमें कुछ लिखा हुआ था कि यू कैन यूज द फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट जेस और वाइट, वाइट कुछ है ना उसमें। हाँ, कल मैंने बताया ना, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपन, एक तो एनपीएक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं ओके, या फिर यस। विट से भी कर सकते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं कल का हाँ। अटेंड नहीं कर पाया, चेक ओके, इट। यस, थैंक यू। फाइन। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सो जिनको एंगुलर आता है ना वो एंगुलर से रिलेट करके करो। अब एंगुलर पढ़ते वक्त तुमने जो टास्क किए होगे वो टास्क यहाँ पे करके देखो। ओके। इस वे में जाओगे तो रिएक्ट 100% समझता है। ओके। सर अभी तक तो मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहा, जो आप बोल रहे थे कि नहीं है आपको। डिफिकल्ट, द वे आप किससे पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि मुझे सीखने में भी बहुत टाइम लगा था, बट एक बार ये समझ में आ गया तो फिर हाथ बैठ गए। नहीं, एक जैसे आपको आप क्रिएट एलिमेंट वो उस थ्रो में जाएंगे तो टफ लगेगा, अभी ये ऑब्वियसली तो। टफ लगेगा। अक्षय से नहीं पता है सबको, उसका मैंने कोर्स लिया था। ओके, तो उसने वो वे यूज किया, तो इतना डिफिकल्ट लगा था मुझे, मतलब जावास्क्रिप्ट अच्छे से पता होने के बाद, एंगुलर अच्छे से पता होने के बाद भी वो उसका कोर्स भी मुझे डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि उसने पूरी हिस्ट्री कवर करते हुए गया वो, कि एक्चुअली या, रिएक्ट एलिमेंट कैसे क्रिएट होता है। अगर स्टार्टिंग में अपन हार्ड चीज देखते तो वो समझने में दिक्कत जाती है। मोराल डाउन हो जाता है हाँ, सबका। वो भी है, मोरल डाउन हो यस जाता। अल्टीमेटली उसने यस। यही बताया, लेकिन स्टार्टिंग उसने वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से किया। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया, वो जो फैंग कंपनी हो गया, उसमें वो क्वेश्चन पूछते होंगे, बट मिड स्केल और अपनी एमएनसी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछती। उनको काम करने वाले बंदे चाहिए, क्या करना है। हर कोई एंगुलर, पहली बात एंगुलर के प्रोजेक्ट में डीएसए और एल्गोरिदम यूज, एंगुलर हो या फिर वेब टेक्नोलॉजी में, डीएसए टॉपिक पूछना ही नहीं चाहिए, राइट। बट उसने वो सारी चीजें कनेक्ट करके इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया, फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर एक जन से मैंने पढ़ा, तब जाके ध्यान में आया मैं कि नहीं, इजी है ये। ठीक है। यस। सर हाँ सर आप जो लॉजिक बिल्डिंग के जो शॉर्ट रील्स पहले यूट्यूब पे बना रहे वो प्लीज वैसे कंटिन्यू करो ना फिर से, रिएक्ट में भी जैसे। हाँ, तो ठीक है ना, ये कंप्लीट होने दो, फिर वही सेम में रिएक्ट में कैसे करते हैं वो हाँ, बताओ। ओके, थैंक यू। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू। या थैंक यू। थैंक